Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start the other short story of MEG 15 Comparative Literature Theory and Practice. Okay, those who have opted for this particular course MEG 15, it will be fruitful for you. Okay, so our next work is the Nose, which was written by Nikolai Gogol. Okay, so always remember in your mind whenever you are writing an answer, so what you have to remember, first of all you have to write about the author. Not that should not be elaborated so much, but yes, in a very precise manner you can implement all your pointers. Okay, so this novel this short story was written by Nikolai Gogol. He was born on 31st of March 1809, and when he wrote this particular short story, when he was living in St. Petersburg. Okay, and so let's have talk about his famous work which he wrote: Dead Souls, second was The Overcoat, and the third, Diary of a Madman. So without wasting a single minute, let's start with a summary of the nose. I know before starting, let me tell you, this is not something, you will not be taking a lot of interest in this, because this is a comedian, this work is written in a comedian manner. Okay, you'll be like, what the author is trying to say in this particular short story, and it is bit awkward for the readers as well. So let's start. Obviously we have to learn this, we have to go through this because it will come in exam. Okay, so the nose is about a very strange event involving Kovalyov. And listen, I'll have a bilingual discussion, Hindi plus English. Okay, so the nose is about a very strange event involving Kovalyov. So side by side we'll also discuss about the characters. Okay, I have not made another video based on the character or themes, so it will be included in this only. So the nose is about a strange event. बहुत strange event की बात हो रही है. क्या ऐसा क्या हुआ? The one of the character is Kovalyov. Kovalyov एक character है इसमें, and he is the protagonist. Yes, who cares a lot about his status, and he is somehow always worried about his status and his nose. Okay, two things he is always worried about: his status and about his nose. So the story starts with a barber named Ivan Yakovlevich. Okay, now this is the another character. See, I have marked the character with a yellow, I have highlighted the character with a yellow color. Okay, so wherever you find the yellow color highlighting, it means I have highlighted the character. So the first character we learned, that is Kovalyov, and the second is Ivan Yakovlevich, isn't it? Now finding a nose in his breakfast. Now this barber, he found a nose in his breakfast when his wife was preparing a breakfast for him. ठीक है, उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, तब उसने एक नाक देखी अपने ब्रेकफास्ट में, एंड ही वाज स्टन्ड. ओके, एंड ही नोज द नोज बिलोंग्स टू कोवलेव. लेकिन वो जानता था कि वो जो नोज है वो किसको बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है कोवलेव को, वन ऑफ हिज क्लाइंट. और वो क्लाइंट किसका है? इवान का. ठीक है, इवान याकोवलिच का क्लाइंट है. एंड स्केयर ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल, एंड नाउ ही वॉज सो स्कैर्ड कि उसके क्लाइंट की नाक उसके ब्रेकफास्ट में कैसे आ गई. सो वॉट ही थॉट ऑफ थ्रोइंग दैट पर्टिकुलर नोज इन अ रिवर. येस, ही वॉज ट्राइंग टू डम्प दैट नोज इन अ रिवर, इन टू द रिवर. सो उसने सोचा कि मैं फेंक देता हूँ, लेकिन जब वो फेंक रहा था तब उसको किसने देख लिया? पुलिस ऑफिसर ने देख लिया. एंड पुलिस ऑफिसर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम, व्हाट आर यू डूइंग हियर? Ivan was now, he was perplexed, he was very, he got very disturbed that how to answer. So but the officer keep asking the same question, what are you doing here, tell me. Okay, and now here you can see the section ends. It means this Ivan Yakovlevich, he found a nose in his breakfast. उसको nose मिली, ठीक है. अब वो फेंकने गया रिवर में, ठीक है, डंप करने गया, तो उसको वहाँ पे कौन मिल गया? पुलिस ऑफिसर मिल गया, जो कि
उस पर क्वेश्चनिंग करने लगा कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसा तुमने क्या फेंका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सेक्शन एंड हो जाता है। अब हम सेकंड सेक्शन की बात करेंगे। इसमें क्या हुआ, ये कोवलेव वेक्स अप वन मॉर्निंग। अब वो सो के उठा, कोवलेव जो प्रोटैगनिस्ट है, एंड टू फाइंड हिज नोज मिसिंग, एंड व्हाट ही फाउंड कि उसकी नाक वहाँ से गायब है जहाँ पे नाक होती है, एंड जो वो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, एंड दैट इज समहाउ you know it was looking like a plain path, plain field, ठीक है, स्मूथ एकदम। सो स्केयर एंड कन्फ्यूज नाउ, इट वॉज ही गॉट वेरी कन्फ्यूज नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली। सो ही कवर्स हिज मिसिंग नोज, ओके, एंड ऑब्वियसली जब वो बाहर जाता तो उसका मजाक उड़ता, तो उसने हैंकी से अपना फेस कवर कर लिया एंड ट्राइज टू गो अबाउट हिज डे, and he went away. So he then sees his nose dressed as a high ranking man, and what he saw, जब वो बाहर गया उसने देखा कि उसकी नाक जो है वो कपड़े पहन के अच्छी तरह ड्रेस्ड है, किसकी तरह, हाई रैंकिंग मैन की तरह। Now I would suggest you to imagine this thing, okay, until and unless you won't imagine, you won't, this particular short story you will not be able to, like, you can't learn it or you can't remember. So वो बाहर गया, कौन, प्रोटैगनिस्ट कौन था, कोवलेव, और बाहर गया, उसने फिर देखा कि उसकी नाक ने कपड़े पहन रखे, अच्छे से ड्रेस्ड है, लाइक अ हाई रैंकिंग मैन, जैसे कि बहुत हाई रैंक का कोई मैन हो, इन एंटरिंग अ चर्च। और वो कहाँ एंटर कर रही है, नाक चर्च में एंटर कर रही है। Now you can consider this particular nose, the nose as a person. जस्ट इमेजिन करो कि ये नोज़ एक पर्सन है, और राइटर ने भी, जो ऑथर है, उसने भी ऐसे ही प्रेजेंट करा है अपने वर्क में। व्हेन कोवलेव नर्वसली टॉक्स टू द नोज, जब कोवलेव बात करता है नोज से कि द नोज गेट्स एनॉयड कि वापस आ जाओ, तो नोज कहती मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम बैक, एंड से इट इज़ इट्स ओन पर्सन, ठीक है, एंड नॉट कोवलेव नोज। वो कहते हैं मैं कोई और इंसान हूँ, मैं तुम्हारी नाक नहीं हूँ, ठीक है। तो अब उसके बीच में क्या होता है, सेटिंग कहाँ पर हुई है, चर्च के आसपास, ठीक है। अब वाइल कोवलेव इज डिस्ट्रैक्टेड, अब कोवलेव डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, व्हेन ही लेज एन आइज ऑन अ वेरी यंग वुमन, ओके, द नोज स्नीक्स अवे, और इतनी देर में जो नोज होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। फ्रॉम देयर कोवलेव फेल्स टू प्लेस एन एड फॉर हिज नोज, फिर वहाँ से कोवलेव कहाँ जाता है, न्यूज़पेपर क्लर्क के पास जाता है कि तुम ऐसा करो, मिसिंग रिपोर्ट लिख दो। किस चीज़ की मिसिंग रिपोर्ट, मेरे नाक की, मेरी नाक भाग गई है कहीं, मिल नहीं रही है मुझे। तो दिस न्यूज़पेपर क्लर्क डिक्लेयर्स दी, now he also got very, this was very strange for him as well। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं ऐड, कोई इसका ऐड नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो, और अगर मैं दूंगा भी तो लोग क्या सोचेंगे, यस। सो ही डिक्लेयर्स दैट ऐड वुड बी टू स्ट्रेंज टू प्रिंट, यस। सो ही completely denied his request। then the पुलिस कमिश्नर आता है, refuses to assist कोवलेव। फिर वो पुलिस कमिश्नर के पास भी जाता है और उनसे असिस्टेंस मांगता है, हेल्प मांगता है कि मेरी नाक ढूंढने में मेरी मदद करो, बट वो लोग भी रिफ्यूज कर देते हैं, एंड एसेंशियली डिक्लेयरिंग दैट वट एवर हैपेंड वॉज प्रोबेबली कोवलेव ओन फॉल्ट। और पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो किसकी फॉल्ट है, कोवलेव की खुद की एक बहुत बड़ी फॉल्ट है। कोवलेव गोज बैक टू हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट चला जाता है, एंड स्टॉप ट्राइंग टू मूव अप सोशली एंड चेज आफ्टर वुमेन लाइक ही इज यूजुअली डज। यू नो व्हाट, दिस, ये जो कोवलेव है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये विमेन को ना एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करता था। ही ऑलवेज ऑब्जेक्टिफाई वुमेन, ठीक है, और इसलिए वो फ्लर्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहता था, ओके। Now that evening the police officer brings Kovylev nose back to him। लेकिन उसी जब वो अपार्टमेंट पे चला गया बहुत निराश होके, ठीक है, उसने बिल्कुल मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, एंड दैट उसी पर्टिकुलर डे पे इवनिंग में पुलिस ऑफिसर वापस आए और उन्हें कोविलेव की नोज़ जो थी वो लौटाई, क्योंकि जिस पुलिस ऑफिसर का कन्वर्सेशन चल रहा था किसके साथ, इवान के साथ चल रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आई डोंट, एंड
तो वही ऑफिसर जो किसकी नोज वापस लाया, किसकी नोज वापस लाया, कोविलेव की। द नोज इज नाउ जस्ट अ नॉर्मल। और उसने क्या देखा कोविलेव ने कि उसकी नोज क्या है, नॉर्मल है, लाइफलेस नोज, कि उसकी नोज पहले जैसी रही ही नहीं, बहुत डिफरेंट हो गई है, बहुत छोटी हो गई है और लाइफलेस सी हो गई है। नाउ कोविलेव tries to put it back but can't, so he asked a local doctor for help. Now he got so puzzled that he asked doctor for the help, क्योंकि वो रीअटैच हो ही नहीं रही थी नोज, ठीक है। द डॉक्टर refuses, डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया, saying he could reattach it। डॉक्टर ने कहा मैं अटैच कर सकता हूँ, बट थिंग्स कोविलेव इज बेटर ऑफ विदाउट द नोज। बट वो क्या कहता है कि अच्छा है तुम बिना नाक के रहो। ओके, नाउ आफ्टर ट्राइंग टू बाय द नोज फ्रॉम कोविलेव, अब डॉक्टर ने कोशिश करी कि वो कोविलेव से नाक मांग ले कि ये जो नोज है ये मुझे दे दो, ठीक है। लेकिन कोविलेव क्लियरली रिफ्यूजेस, ही डिनाइज। द डॉक्टर लीव्स, तो डॉक्टर चला जाता है वहाँ से। कोविलेव वंडर्स हाउ दिस ऑफुल थिंग हैपन टू हिम, ऐसे कैसे हो गया कि मेरी नाक छोटी हो गई, वो एकदम लाइफलेस ही हो गई। ही थिंक्स Podichina. Podichina is the another character. I told you I have highlighted the characters with the yellow highlighter. Okay, so Podichina is the another character. और ये जो यंग वुमेन जो उसने वहाँ पे देखी थी चर्च के पास में, ठीक है, जो उसने जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था, वो उसकी मदर है पोडिचिना। ओके, वो सोचता है कि उसने कुछ ऐसा करा है कि मेरी नाक छोटी हो गई है और लाइफलेस हो गई है। द मदर ऑफ अ यंग वुमेन ही ट्रीटेड बैडली। और ये जो कोविलेव है, इसने इस वुमेन को बहुत बैडली ट्रीट करा था पहले। तो क्या पता इसने कोई ऐसा जादू कर दिया हो, या मे बी शी हैज़ कर्स्ड हिम, शी हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन हिम, ठीक है। तो ही सेंड्स हर अ लेटर, तो वो लेटर भेजता है कि अगर आपने ऐसा करा है तो इसका अंजाम बहुत बुरे होंगे। ओके, थ्रेट, इट वॉज अ काइंड ऑफ थ्रेट ओनली। सो पोडिचिना रिप्लाइज, पोडिचिना ने क्या कहा, सेइंग शी डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो खुद चाहती थी, जो पोडिचिना थी उस यंग वुमेन की मदर, वो खुद चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी कोविलेव से हो जाए, तो वो भला ऐसे क्यों करती। सो कोविलेव डिसाइड्स शी इज़ नॉट द कॉज, कि वो तो इस चीज़ में उनका कोई हाथ नहीं है। मीनवाइल रूमर्स अबाउट द नोज स्प्रेड ऑल ओवर द टाउन। अब धीरे धीरे ये बात स्प्रेड होने लगी, इट गॉट डिसेमिनेटेड ओवर द पीपल कि कोविलेव की नाक नहीं है। एंड सून इट बिकेम अ पॉपुलर स्टोरी दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट, एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम, that he's not having nose, he's lost his nose. So most people in the city are fascinated by it, but some wealthy men ignore it. Okay, so some people, they were very interested in talking about his nose, कि भाई उसकी नाक का ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ। ओके, बट जो अमीर लोग थे, वेल्दी मैन थे, उन्होंने प्रेफर करा इग्नोर करना इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि बहुत एक चीप और वल्गर सा टॉपिक है गॉसिप का। यस, so the story jumps ahead 2 weeks. अब स्टोरी 2 weeks आगे का सीन उसमें दिखाया है, ठीक है। And one morning Kovilev wakes up and is overjoyed. अब 2 week के बाद का सीन दिखाया है कि कोविलेव सो के उठा है and he is overjoyed. He is so much happy. Why he is so much happy? Because he saw that he again he got his nose. Yes, that his nose has miraculously returned to his face. फिर से उसकी नाक उसके पास आ गई है, and if it had never been missing. After a careful shave, अब आपको पता है जो इवान था, इवान याकोलोविच, ओके, he was the barber. ओके, बार्बर था ये। एंड आपका जो ये कोविलेव था, कोविलेव कौन था, एक आप कह सकते हो एवरेज रैंकिंग ऑफिसर था, लेकिन इसको ना बहुत पसंद था कि ये खुद के नाम के आगे मेजर लगाए। तो ये मेजर सबको लोगों को बताता था कि मैं मेजर हूँ, ठीक है। मेजर मतलब कि हाई रैंक का, तो सबको ऐसा लगता था कि ये हाई रैंकिंग ऑफिसर है।
और कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में कह सकते हैं कि ये जो द नोज़ है, क्योंकि इसको हमने एज अ पर्सन ही कंसीडर करा है द नोज़ को, ठीक है। द नोज़ इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर एंड द कोवलेव, ठीक है, कि जो कोवलेव है वो जेलस होता है नोज़ से, क्योंकि नोज़ एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है, राइट, इस शॉर्ट स्टोरी में जो बताया गया है, ठीक है। एंड तो इसमें आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मे बी सोशल स्टेटस बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है। एंड here what they're talking about, yes, again his nose is returned, okay, to his face, and if it had never been missing after a careful shave, फिर से जो कोवलेव है वो गया है बाबर के पास। बाबर का नाम क्या था? इवान याकोवलेविच, ओके। कोवलेव गोज बैक टू हिज यूजुअल लाइफ, और फिर से वो वही चीज़ें स्टार्ट कर दे रहा है। इम्प्रूव हिज सोशल स्टेटस, फिर से सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की फिर से बहुत कोशिश करता है। एंड जो वुमेन्स हैं उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है। ही यूज टू ऑब्जेक्टिफाई दोज वुमेन, ओके। द नरेटर admits that the strange and unexplained part of the story might be hard. अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि ये ऑब्वियस है कि जो ये जो स्टोरी है वो थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है रीडर्स को, ठीक है। एंड अनएक्सप्लेन पार्ट द स्टोरी माइट बी हार्ड, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करी गई है थोड़ी बहुत, तो मे बी थोड़ा रीडर्स को हार्ड लगे स्टोरी को समझना। हाउएवर द नरेटर इंसिस्ट द स्टोरी इज़ ट्रू, लेकिन नरेटर कहते हैं कि ये स्टोरी सच है। हमें तो इमेजिनेटिव लग रही होगी, ठीक है, लेकिन नरेटर कहता है कि स्टोरी सच है। एंड ही कंक्लूड्स बाय सेइंग सच थिंग्स डू हैपन इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफन बट दे डू हैपन, यस। सो वो क्या कहता है कि ऐसी चीज़ें इस दुनिया में होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बार बार हो, बट दे डू हैपन, बट कभी ना कभी होती है, ठीक है। तो ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिज वर्क as an original story, although we as a reader know that it's not it's not the original story, and even it's not possible, it's something beyond. Yes, that's why you can state this particular short story as a magical realism. So I'll make another video on the topic magical realism and you'll come to know, okay, because this topic is also important. So that's all for today. Hope you have understood and enjoyed this particular short story explanation, okay. So thank you and all the very best for your exam. Have a nice day.